Hello friends, welcome back to the online classes. You have finished lesson number 9, Fagin and his boys, and completed all the question answers and the exercises, the book and copy. Today, I am going to take a new lesson. In fact, it's a poem. Lesson number 10, The Wonderful World. Okay, The Wonderful World. I believe that you all love to live in this world, right? You love your parents, you love your siblings, that is your brothers, sisters, you love your friends, you love your house, you love your school, and all surroundings, right? Just imagine if all these things were not there, okay, especially the nature, right? As we know that the people, especially the business people, are mining the earth like anything, and because of which the weather is changing. We cannot predict these days that how the weather conditions would be. आप सभी जानते हैं कि हम सभी अपने अपनी दुनिया से बहुत प्यार करते हैं। इस दुनिया में जो भी चीज़ है, विशेष रूप से जो प्रकृति है, ठीक है, नेचर जो प्रकृति है, उसे हम कितना पसंद करते हैं। हम सभी पहाड़ों में जाना चाहते हैं, हम सभी नदी किनारे जाना चाहते हैं, नौका विहार करते हैं। हमारे गोरखपुर में ही नौका विहार है। अगर आप देखें आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले नौका विहार किस हालत में था और आज वो कितना सुंदर बन गया है कि नहीं? तो वही है कि हमें अपने प्रकृति से प्रेम होना चाहिए। ईश्वर ने हमें प्रकृति, इतनी खूबसूरत प्रकृति दी है कि उसे हमें प्रेम करना चाहिए, उसे उसका संरक्षण करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए, राइट? सो गॉड हैज़ गिवन दिस वंडरफुल वर्ल्ड टू अस, दिस अर्थ टू अस, and it's our duty to keep it safe, to keep it clean, right? So I'll go through the poem and give the word meanings to you as well as explanation to it, okay? So listen carefully. Take out chapter number 10, page number 64. The Wonderful World, written by William Britty Rands. Great, wide, beautiful, wonderful world, with the wonderful water round you curled, and the wonderful grass upon your breast, world, you are beautifully dressed. So, the world is great, wide, beautiful and wonderful, right? ये जो दुनिया है हमारी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मनमोहक है और बहुत ही बड़ा है, ठीक है, विशाल है। सो इसके चारों तरफ क्या है? व्हाट इज देयर ऑल अराउंड द वर्ल्ड? वाटर, राइट? ओके, हाउ मेनी ओशंस आर देयर? हाउ मेनी ओशंस आर देयर? वेरी गुड, 5 oceans, right? So these 5 oceans cover the world, the earth around, right? So that's why it is very, very wonderful. Curled means what? You can see the meaning. Curled, spiral shape, right? क्या होता है कर्ल, स्पाइरल? घुंघराले, ठीक है। हम में से कई लोगों, कई जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उनके घुंघराले बाल हैं, है कि नहीं? वो भी कभी कभी खूबसूरत दिखते हैं, है ना? नॉर्मली सबके क्या है, स्ट्रेट बाल हैं, जैसे मेरे हैं, है ना, स्ट्रेट बाल हैं, सबके ज़्यादातर वैसे ही होता है। लेकिन बहुत ही कम है जिनके बाल घुंघराले हैं और वो बहुत अच्छे लगते हैं, है कि नहीं? तो सेम वे द वर्ल्ड इज सराउंडेड बाय वाटर which is curled, and the wonderful grass upon your breast, that is on the chest of the world, that is on the earth there is grasses, okay, it is a lot of grass are there, and it is beautifully dressed. Dressed means what? Dressed means dressed, okay, कपड़ा पहना हुआ, ठीक है, dressed. So
It's the old English, dressed, it is in dressed. So कपड़ा पहना हुआ है. The wonderful air is over me, and the wonderful wind is shaking the tree. It walks on the water and whirls the mills, and talks to itself on the tops of the hills. So the wonderful air is over me. हम लोगों के आसपास में क्या है? हवा, वायु, right? So this air is all around it, and it's wonderful, right? When we feel very hot, and if a gentle wind blows, how much, what a comfort we feel, right? कितना अच्छा लगता है जब गर्मी में हमको पसीना आ रहा है और एक हल्की सी हवा का झोंका हम पे से गुजरता है तो हमें कितना सुकून मिलता है कि नहीं? तो दिस वंडरफुल विंड blows around, and it shakes the trees, right? It shakes the branches, it shakes the leaves of the trees, as if it is talking to the trees, it is talking to the mountains, to the hills. जब हवा बहती है, जब हवा तेज चलती है तो हमें कभी कभी एक तरह की आवाज़ आती है ना, शू, या एक तरह की आवाज़ आती है. तो वो क्या है एक्चुअली में? वो एक्चुअली में पहाड़ों से, नदियों से और पेड़ों से बातें करती हैं. तो ये सब प्रकृति के एक खूबसूरत उदाहरण है, एक नमूना है जो हमें बताती है कि वो अपने जो प्रकृति में जो भी चीज़ है, हर चीज़ से प्रेम करती है, हर एक चीज़ से बातें करती है. सो इट जस्ट वॉक्स ऑन द वाटर एंड whirls the mills. Whirls means move round and round, घूमता रहता है. ठीक है, वो जो विंड मिल देखा होगा, बड़े बड़े पंखे ऊपर लगे रहते हैं और जब हवा तेज चलती है तो उसके पंखुड़ियाँ घूमती हैं. तो क्या हुआ? तो राउंड राउंड घूमता है. एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स, और पहाड़ों के ऊपर जाके बातें करती. कैसे? जैसे मैंने बताया, आवाज़ करती. जब निकलती है तो आवाज़ करती है, तो बातें करती है पहाड़ों से, नदियों से, नदियों पे चलती है और बातें करती है, पेड़ों से बातें करती है. यू फ्रेंडली अर्थ, हाउ फार डू यू गो with the wheat fields that nod and the rivers that flow, with cities and gardens and cliffs and isles, and people upon you for thousands of miles. So the poet is complimenting earth. How is calling the earth? Friend. Okay, earth is what to us? Is a friend. Some of us call it as a mother also. So it's a friend. So the poet is saying that you are friendly earth. जो पृथ्वी है हमारी एक तरह से दोस्त है, दोस्त के रूप में हमसे व्यवहार करती है. When it goes around the wheat field or corn field or rice field, paddy field, it just walks around and everybody shakes their head. तो जब हवा बहती है तो ये गेहूँ कैसे हिलता है? ऐसे हिलता है ना, झुकता है. तो क्या कर रहा है? वो उनको नमन कर रहा है, वो अपनी तरफ से उनको धन्यवाद दे रहा है कि उसने हम इसको गेहूं को या राइस को या कॉर्न को भरपूर न्यूट्रिशन दिया ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए. तो इसलिए वो क्या करता है? झुक के नमन करता है. विथ सिटीज़ एंड गार्डन्स एंड क्लिफ्स एंड आइल्स, और ये कहाँ से गुजरती है? शहरों से, बगीचों से, पहाड़ की चोटियों से, और आइल्स. आइल्स का मतलब क्या होता है? आइल्स शॉर्ट फॉर्म है आइलैंड का. ठीक है, आइल्स शॉर्ट फॉर्म है आइलैंड का. ठीक है, तो आइलैंड को शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि पोएम है तो पोएम में आइलैंड बोलेंगे तो उसका जो राइमिंग है वो बनेगा नहीं, तो इसीलिए आइल्स शॉर्ट फॉर्म में आइल्स लिखा है. एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, और खूब सारे लोग, ठीक है, हज़ारों मील दूर तक फैले हुए हैं, उन सब के ऊपर से सब उस तुम्हारे ऊपर रहते हैं और तुम उन सब की देखभाल करते हो, उन सबको संभालते हो. यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल, आई ट्रम्बल टू थिंक ऑफ यू वर्ल्ड एट ऑल, एंड येट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे अ विस्पर इनसाइड मी सीम्ड टू से, यू आर मोर दैन द अर्थ, दो यू आर सच अ डॉट. You can love and think, and the earth
cannot. So the poet says that you are so great. Okay, the world, the earth is so great, so wonderful. I just shiver, tremble, shiver to think world at all. मैं अपने आप को ना दुनिया समझ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी दुनिया क्या है, छोटी सी है कि नहीं, अपने माता पिता भाई बहन या दोस्त, लेकिन तुम तो बहुत बड़े हो, तुम्हारे पे तो कितने लोग रहते हैं, हज़ारों से हज़ार, करोड़ों से करोड़ों लोग रहते हैं और कितने सालों से रहते आ रहे हैं, ठीक है। लोग ही नहीं, और कौन कौन है, प्रकृति है तुम्हारे साथ, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, चिड़िया, जानवर सब हैं। तो तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, बहुत बड़ा दिल है, विशाल का है, हृदय है तुम्हारा, जबकि मेरी क्या है, छोटी सी दुनिया है, बस चार दीवारी के अंदर है, अपने जो रिश्तेदार हैं उन्हीं के बीच में, उससे ज़्यादा मैं किसको जानता हूँ, नहीं ना। लेकिन दुनिया कितनी बड़ी है, वर्ल्ड। एंड येट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे, और जब मैंने अपनी प्रार्थना बोली आज, तो मेरी अंतरात्मा ने मुझसे कहा, ओके, अ विस्पर इनसाइड मी सीम टू से, समथिंग इनसाइड मी सेड टू मी दैट यू आर मोर दैन द अर्थ, कि तुम दुनिया से बड़े हो, पृथ्वी से भी बड़े हो। क्यों? तुम भले ही एक छोटे से बिंदु हो इस दुनिया में, ठीक है, इस पृथ्वी पे एक छोटे से, अगर जब प्लेन से उड़ते हैं और प्लेन की खिड़की से नीचे देखते तो हमको क्या दिखते हैं, छोटे 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 बिंदु दिखते हैं, है कि नहीं। तो वैसे ही हम दुनिया में एक बिंदु के रूप में है, लेकिन फिर भी जो मेरी अंतरात्मा मुझसे कहती है कि भले ही जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, बहुत बड़ी है और तुम उसमें एक छोटे से बिंदु हो, लेकिन you can love and think and the earth cannot. So what happens that I can think and love, ठीक है, मैं सोच समझ सकता हूँ, मैं लोगों से प्यार कर सकता हूँ, मैं लोगों में प्यार बांट सकता हूँ, जबकि पृथ्वी ऐसा नहीं कर सकती। पृथ्वी सिर्फ दे सकती है सब कुछ, वो भी एक तरह का प्यार ही है, लेकिन दिखा नहीं सकती है, हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। ऐसे एक इंसान के रूप में हम बहुत बड़े हैं, हमें लोगों में प्यार बांटना चाहिए, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार में रहना चाहिए, और वही पृथ्वी भी हमसे करती है। अंडरस्टूड? आई बिलीव you have understood the poem. Go through the poem carefully, understand it nicely, and write the first two stanzas, that is 8 lines in your copy. Now let us see the exercises on page number 65. Okay, like exercises on page number 65. The fill in the blanks and question answers I will give you. I'll just go with the simple present tense, the grammar part on page number 65, simple present tense. Now, if you see in the simple present tense, okay, just wait, I will write on the blackboard. As I was saying, the present tense, simple present tense I was talking. So if you see, there are 3 sentences. Okay, she is a student. I obey my parents. The earth goes around the sun. Now, what exactly are these? Now, as in your book, if you see page number 65, it walks on the water. The sentence is given, it walks on the water. Now, we use a simple present tense to show 3 ways. Okay, we use this simple present tense in 3 ways. First, a thing happening in the present. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम दर्शाते हैं 3 तरीके से। पहला है कि जो चीज़ अभी हो रही है, अभी जो चल रही है ना, जो अभी हो रही है, जैसे आई एम टीचिंग, ठीक है, दिस इज प्रेजेंट टेंस, इनफैक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इट इज आई एम टीचिंग, और यू आर रीडिंग। Okay, so all these are simple present tense, continuous tense. In simple present tense, if you see that she is student, okay, he is a student, your father is doctor, okay. So what is this? All are simple present tense.
So happening right now. Second thing, things that happen repeatedly, जो बार बार होते हैं, ठीक है, things happening repeatedly, just like as I given, I obey my parents, okay, I obey my parents, I do my homework, okay, I go to play. All these are repeatedly, every day we play, every day we do homework, ठीक है. Raju goes to play. So all these are repeatedly actions. And the third one, to state a permanent truth, जो सच है हमेशा के लिए. जैसे as an example, the earth goes around the sun, ठीक है. जो पृथ्वी है सूरज के चारों तरफ घूमती है. ऐसा तो है नहीं कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है कि नहीं. और ये क्या है, सच है अनंत काल तक, इसको कोई झुटला नहीं सकता, इसे कोई बदल नहीं सकता, ये हमेशा है. द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, राइट. सो इट इज ऑलवेज द ट्रुथ, ओके. वो कभी वेस्ट से नहीं आएगा या साउथ से नहीं आएगा, राइट. वो हमेशा ईस्ट से ही आएगा. सो दीज आर द परमानेंट ट्रुथ, ओके. Come to the page number 66. Page number 66. You see the box? We add s or es to a verb when the subject is singular. We do not add s or es when the subject is plural or when subject is I or you. This you have already studied in your 4th class. Okay, you have already studied this in your 4th class, that s और es तभी लगाते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है. सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर कौन कौन सा, जैसे ही, शी, इट, या किसी का नाम है राजू, सीता, गीता. ये जो सिंगुलर नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, उन्हीं के बाद ही वर्ब में, ठीक है, क्रिया में, वर्ब में एस या ई एस लगता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर है. आई और यू एक्सेप्शनल है, ठीक है. आई और यू, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि आई और यू भी तो सिंगुलर है, करेक्ट, लेकिन ये दोनों अलग हैं, ठीक है. ये दूसरों के साथ नहीं जाएंगे, ये एक्सेप्शनल केस है, तो इसीलिए इनके साथ एस या ई एस नहीं लगता. दूसरी चीज़ देखो, वी यूज़ डज नॉट विद द सिंगुलर सब्जेक्ट, डू नॉट व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल, एंड ऑल्सो व्हेन द सब्जेक्ट इज आई और यू, एंड डू और डस इन द बिगिनिंग टू मेक द सेंटेंस इंट्रोगेटिव. सेम थिंग, सिंगुलर के साथ डज लगेगा और प्लूरल के साथ डू, ठीक है. आई और यू फिर से अलग है, ठीक है. दे आर एक्सेप्शनल इन दिस केस ऑल्सो. हियर विद द डू ओनली आई और यू विल कम, नॉट डज, ठीक है. आई डू नॉट, वी डू नॉट से आई डज नॉट, गलत है. आई डू नॉट या यू डू नॉट, नॉट यू डज नॉट, गलत है, ठीक है. एंड इंट्रोगेटिव, डू यू लाइक, डज यू drink, no, all these things. The exercise is there. Change each sentence as directed. Now, it walks on the water. Interrogative, does it walk on the water? Now, does it water, does क्यों आया, do क्यों नहीं आया? क्योंकि verb में क्या लगा है, walks में क्या है, s लगा है. क्योंकि s है तो does ही आएगा, हम does ही पूछेंगे, ठीक है. does it walk, और जब डज से हम पूछेंगे तो वॉक से एस हट जाएगा. सो डज इट वॉक ऑन द वाटर. और नेगेटिव क्या होगा, इट डज नॉट वॉक, ओके. अगेन डज लगा रहे हैं तो वर्ब में एस हट जाएगा, ठीक है. वॉक्स में से एस हट जाएगा, तो डज, इट डज नॉट वॉक ऑन द वाटर. दे गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक. ना दे क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल, राइट, इसीलिए गो आया है. तो इंट्रोगेटिव में क्या आएगा फिर, डू, गुड, ओके. डू दे गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, ओके, डू. और नेगेटिव क्या हो जाएगा, दे डू नॉट गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक. थर्ड, डू दे गो टू स्कूल, ऑलरेडी इंट्रोगेटिव में, अब हमको उसको पॉजिटिव में बनाना है. तो डू दे, ऑलरेडी क्वेश्चन में देखो डू दे है, तो दे क्या है, प्लूरल, तो हम सिर्फ डू को हटा देंगे और सीधा दे गो टू स्कूल लिखेंगे, ठीक है ना. पॉजिटिव हो गया. नेगेटिव क्या होगा तुम्हारा, दे डू नॉट, ओके, दे डू नॉट गो टू स्कूल. सो आई विल गिव यू ऑल दिस एक्सरसाइज इन योर in the video, after this video. You just copy it down in your
book. So today I will give up to exercise number 5. Rest I will give you tomorrow or next week. Okay. So do this work, everything, question answers and all everything in the copy. Before writing the question answers, write the first 8 lines in your copy and then do the question answers. Hope you have understood the chapter well and the grammar part, present, simple present tense and the use of s and es and do and does. So do it carefully. Okay. So stay home, stay safe. Thank you.